Yeah, I think so. It's It's 8 p.m. sharp and we are good to go. And first of all, a very warm welcome to all the participants. I'm glad that you all have joined the session with a zeal, with a hope to learn something new, to get an idea of a journey from a normal B Farm college to IIM. A girl, an achiever, has joined us today who is going to be the speaker for the day. Recording milega. Yes, you will get the recording. But try to attend live because the speaker that we have today would probably solve your doubt one on one if you attend it live. And if you have any queries, she'll be, picking up your queries during the session and post the session. So try to attend live. And today's speaker, Miss Yashika Bhattat, she has cracked so many management entrance tests. You name it, and she has nailed it. CAT, NMAT, SNAP, and many more. So today's speaker is going to deliver a webinar titled Journey to an IIM After Pharma. So it's going to be an important journey because many times people fear from going for a transition because they feel masters or MPharm is the only opportunity. So she has got offer letters from IIMs, NMIMS, and many top institutes. So without any further ado and delay, I would like to invite upon our speaker for the day, Miss Yashika, and hand over the session to her for providing you insights on the topic Journey to IIM After Pharma. Welcome, Yashika. Hello, guys. Very good evening to all of you. Sorry for the delay, first of all. But I would like you all to say that I'm very thankful for all of you that you took a step towards your better future this time. Thanks, Payam, for inviting me. And before we begin, let me just share my screen. So before we begin and we dive into numbers and strategies and how should we prepare for an MBA entrance exam, I want this to be a seminar, not just a lecture. I want it to be interactive. Whenever you feel you have a doubt, you can unmute yourself and ask me any doubt if you want. And let's dive. Here we are from B Farm to MBA. I mean, if you are here, you have already taken a step better for your future because 95% of the students never think about going for a master's, going for a MBA, which is so non-conventional path for a students like BPharm. So 1% students explore MBA as an option, and I am really glad like you all are considering MBA as an option, and I'm really glad that you all are here. So, who am I to talk to you like all this? So, I am Yashika Bhattar. As Payam said, I am a BPharm graduate and I'll be going for an MBA in IIM Jammu this year. I was a rank holder among like in Nagpur University BPharm merit list. I was also the runner-up at national level scientific poster presentation. And during my MHCT, I scored 99.02 percentile and I have cracked 4 IIMs. So, hi all, let's start with the like session. I'll tell you all my journey. So after 12th, I was also preparing for doctor as you all were preparing, and NEET didn't go well. So I was like, what should I do? And in Maharashtra, there is a CET exam for going into a B farm. I gave that. I scored a solid 96 percentile in that exam and got admission into a B farm college. And during that period, I was literally googling that, oh, B farm, मुझे तो मेडिसिन में जाने का मौका मिलेगा, मुझे कंपनीज में जॉब करने का मौका मिलेगा, and I'll make medicines and not work under a pharmacy job or anything. So I was very happy. I searched about I searched about the salary a BPharm student gets, and it was around 8 LP or 9 LP showing on a Google.
So I was very happy. Oh wow, I'm going to make my career in medicines. I'll be very happy. I'll make medicines. I'll help patients. But it was then when the reality hit, because we all know कि B Farm के बाद there are so many unsaturation is going on there. So during B Farm, as you all know, have you all done that B Farm mandatory internship yet? You all can like connect with me through messages or you. Yeah. So all of you are from final year or you are done with the B Farm? Okay. So most of them have done and are in final year or so. Okay. So during my mandatory internship that we have to do, I did it in Biocon. You all have heard the name of Biocon, Biocon Pharma Limited. Yeah. So I did internship there, and I did it in generic formulations and R&D department. B Farm mein, we all have that dream now that we have to go into R&D. So I did it in R&D internship. So there, when I spent time in lab and I talked with my colleagues who are already did M Farm and they're doing research on medicines and all. I got to know that it's a very monotonous life, and after 4 to 5 years of experience, also, they're not getting what they should get. Like one of my senior, there was she had around a solid 3 years of work ex, and still she was getting 50,000 per month in hand after cutting all of the PF and tax and whatever is there. So there I got to know that, oh shit, there is so much of gap and पैसा तो I mean we all have to मेहनत around 20 to 30 years उसके बाद we can get the money that we imagine that we should get after a specific education, right? So I talked to many of the seniors and colleagues there, and they all recommended me to go for an MBA because I had a personality. I was communicative and I had confidence. So they were like, your personality is solid for an MBA. You should go for that. But still, I was not sure about an MBA. I did my third year, and during fourth year, we all have that project and all. So I was not sure that what should I do. I gave GPAT for just like I'll see what I have to do. I gave GPAT, and after that, when fourth year was done, and when my B Farm merit list came in, and I was among the top 10 rank holders in Nagpur, I got to know that I feel I should not go ahead with M Farm because there is so much of saturation going ahead in M Farm. And that's why I gave it a risk and started preparing for CAT. I started preparing for CAT in July. And July lag chuka hai, so you all have a chance to starting preparing for an MBA. So I started preparing, and then here I am taking your seminar, going to an IIM. So that was my journey. Discovered MBA as an option, faced fears. I'll talk about it in further slides, and now going to an IIM. So I would say ki no clarity. I saw some of the like polls ka reaction that some of them don't have the clarity. If you all are here who voted there, I would say no clarity is not a failure. I feel it's the starting point of every great or every futuristic thing we all are going to get. So be ready. Something good is going to happen, I'm sure. This is the of your career. सब लोग सोचते हैं कि ग्रेड के बाद will do job, will do masters and all. So I would say this is the last chance to change क्योंकि 12th के बाद nobody guided us if we should do B Farm, we should go for a, but this is the chance that we can decide by our own because उस time पे क्या circumstances थे because we don't have had the knowledge, right? हम बच्चे थे उस time and nobody had the courage to tell us that B Farm मत करो. Now this is the chance. You should literally search about it. MBA is literally a great option. Some of them, I saw the poll, some of them are really sure about it. And I'm really glad that you all are because I did that mistake and I didn't prepare it in my final year. But if you all are really sure about MBA, then it's really a great thing. Okay. Somebody asked, wait a second. Okay. Yeah. So it's
It's same. Like some of the colleges shows specialization in hospital. Some of the colleges shows health in healthcare management. But after MBA in healthcare or hospital management, most like 90 to 95% of the placements occurs in hospital. So it's not that kind of thing. There is nothing different around it. So you can do in either. But I'll talk about in MBA in healthcare and in MBA in core also, because I prefer core. So I'll talk about in the further slide. And I would say this is the last easy chance, and you should take the destiny in your hand and start preparing for CAT, I feel. So the numbers don't lie. Okay, so I saw the poll again, and many of you were like confused between MPharm or MBA. So that's why I did this slide. I would I will literally tell you the reality which is happening in companies. Okay. So as I said, I did my internship in Biocon. So that time I got to know कि जितने even you can also see that जितने भी job descriptions आ रहे हैं ना, उसमें लिखा होता है कि B farm, M farm, MSc and BSc. Okay. So this is there because companies are preferring MSc over M farm. Now that is why कि तुम लोग सोच रहे हो ना एम फार्म मेडिसिन की नॉलेज तो हम लोगों को ही है ना, देन व्हाई कंपनीज आर प्रेफरिंग एमएससी ओवर अस. Okay, so all of you are not sure about MBA in healthcare or pharmaceutical management. We'll talk about that in further slides. I have added that slide during like fifth or sixth slide is that. We'll discuss about it, Amit. Okay, so I was saying that people are preferring, companies are preferring MSc over MPharm, right? This is there because MSc वही सेम काम जो MPharm उन्हें करके दे रहे हैं QA QC में, वो सेम काम कम पैसों में करके दे रहा है. तो why would a company will hire an MPharm जो अच्छी डिग्री है, definitely it's a good degree, but उसको अगर उसे 40,000 देना पड़े और वही काम MSc 25,000 या 30,000 में कर दे, तो obviously the company will hire an MSc, right? So because of that, all the MPharm graduates are being, yeah. So I'll talk about that also. Exams coming during October, November, and December. So all the companies are preferring MSc, and that's why MLO को jobs नहीं लग रही है, because day by day colleges are increasing, M.Pharm grads are increasing, B.Pharm grads are increasing, and this the population of B.Pharm graduates and M.Pharm graduates are very dense, and the jobs that are available in the market are very less. And out of this, MSc and BSc are taking the same jobs that are available for M.Pharm or B.Pharm. So that's why ये जो market चल रहा है is because of that. So I would say there is a very limited scope after, even if you don't get a job in company, there is a like job in, you can do research or you can go into teachers field, but obviously वहाँ भी salary and all का difference आ जाता है. तो long term career के हिसाब से I would say M.Pharm is getting very saturated, and I would all suggest you that should consider everything before hopping into a master's degree, because this is the last chance. Okay, I think all of the people who had a doubt regarding M.Pharm plus MBA, what should we consider, all are clear, I feel. Now we'll go ahead. Why science students are considering choosing business, right? Definitely, first reason is exponential salary jump. If so after B.Pharm or M.Pharm, if we get 30,000 in hand, but after MBA we get around 80 to 90,000 in hand. So why would a student not consider that and will consider a B.Pharm or MBA? So I would say second thing is we get a flexibility. As all were asking me healthcare MBA or pharma MBA, I don't see any doubt that is asking, can a B.Pharm student transition into a normal MBA so that we get a flexibility to move around all the companies we have. I don't know why you all are not aware, but we'll discuss about that and I'll get you aware about that, because I have literally left India's best MBA colleges of healthcare management ka offer and chose a core MBA to move ahead with. Yeah, it's a good option. Definitely. That is what I'm talking, Vedika. That general MBA gives you flexibility. That is written here. Like industry again, you can work in FMCG, consulting, healthcare. You always have that option to move into healthcare after doing MBA in core. Also, you can go into marketing, any industry you name, and you have that option to move into. So MBA gives you that flexibility. Now, talking about the combo,
pharma plus MBA gives you that combo, because B schools literally want perspectives, diversity, and we bring diversity and people are loving it, because जो हम लोगों ने सीखा है लैब्स में, एक अटेंशन टू डिटेल या फिर ये चीज यहाँ कैसे की जाती है, हर चीज का एक बारीकी से ध्यान रखना, दैट इज नॉट विद बीबीए स्टूडेंट्स, राइट? हम लोगों का 4 साल में वो एक माइंडसेट बिल्ड हो चुका है दैट वी हैव, एंड दैट्स व्हाई बी स्कूल्स आर प्रेफरिंग द पीपल हु हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड. सो वी ब्रिंग अ रेयर कॉम्बो, ओके? And obviously leadership fast test, because after BPharm, as I mentioned, that one of my senior was of 3 years experience and still was working at a 30,000-40,000 salary, right? I would say after MBA you start with the managerial position. You, like, if I talk about Biocon only, if I do an MBA and then get a job in Biocon, I will be at a managerial position and literally managing all of them who are working in lab doing a research on a medicine, and they will report to me like, okay ma'am, this research has been done, please tell me what I have to do or what else is left to be done. So this is the difference after going to a job after BPharm and after MBA, okay? Yes, definitely after MPharm and MBA कर सकते हैं, Gaurav. I have a like literally example. One of my senior, I connected him to on LinkedIn. He has also done an like MBA from IIM Jammu, okay, and that too in core. That sir did BPharm, and that sir gave GPAT, NIPER, and then got into NIPER for an MPharm. उन्होंने MPharm NIPER से किया. You all are dreaming about it, right? But उन्होंने किया, and उसके बाद उन्होंने CAT दिया. He was not happy with it कि I did, या हो सकता है उन्हें जॉब ना मिली हो NIPER के बाद. There is in number of possibilities why he did an MBA after MPharm, but that too after NIPER, he prepared for CAT, and now he did all of the like MBA core wala thing through IIM Jammu, and now he's a branch manager in a bank. Can you all even imagine कि BPharm करने के बाद, MPharm करने के बाद, he did an MBA and now works in a branch manager in a bank, like bank. Can you even imagine yourself in a bank? So Gaurav, I hope you got your answer, that you can obviously do an MBA after MPharm, and that's a very great option to move your career ahead with. What about commerce? PBA student want to go in healthcare. Okay, so this is definitely possible, Shraddha. One of my followers commented on the same on my reel around 2-3 days back, and I cleared this thing to her also, that it is really possible to go into healthcare if you are passionate about it. You can go for an MBA in healthcare. Definitely you will like suffer in some things, as we all are suffering in maths, because we had not touched maths, right, in 6 years. So you will suffer in something. You will have to study about whole body and like all the ecosystems that is working in MBA. In your body. But you can make your career and you will definitely get a good opportunities, because everyone knows that healthcare is never going to die, even if something drastic happens, right? Okay. Hi, Kunal. Okay, you also joined. Okay. Now, okay, I've answered all the queries, right? Okay, I would say definitely a B school is worth it to do in management MBA degree. Okay, so all of you are asking so much of doubts. Wait, I'll answer one of okay, somebody asked, ma'am, MBA from NIPER or IIM, which one is best with respect to salary? I would say IIM is definitely a best option, because it is purely made for in management, right? NIPER has been like curated around research, around pharmacy, right? So udhar jo companies aayegi, they will prefer people who have done MPharm or who have a research oriented mind, right? So for salary, I would say for salary, for a good opportunities of job, definitely you should literally prefer a management B school and not a something else specialization school, so that you can get better opportunities. Okay, we will talk about preparations and maths. I have all covered all eligibility. I've covered all of this in the further slides. Okay, can I do MBA in hospital? Okay, yes, Ashish, you should definitely do it if you are from a hospital sector, and it's a really great option for you.
Yeah, so most of the people who get into a MBA are not satisfied with their job and they want a better career switch, and that's why they do a MBA and to get a better opportunities in life. So we'll all cover all of your doubts like maths and all. I've all covered in further slides. We'll talk about it in future. So I was talking about MBA versus yeah, Pam. Yeah, Kunal. So I was talking about MBA versus non-MBA path, right? So I would say that the 15-year view that we get to see in this graph, you will literally be amazed about that because you start with, for example, we can take that we a non-MBA person like after BPharm, if I would have not gone for an MBA, I would have started it with around 4 LPA. That's the maximum we can get, or we can say I would have started with 5 LPA, right? I would have worked for 2 years and switched my position, and then I got promoted and all and all. After that, also after 15 years, I would have never reached to a position who gets around 50 lakhs maybe or 25 lakhs also. I would have never reached after 15 years to a 25 lakhs position, right? But after MBA, you start minimum with if you do from a good B school, if minimum you start with 9 or 10 LP. I'm talking the lowest, okay? So we will start with 10 LPA. And after that, you will be like, after 1 or 2 years, you will be get promoted to a senior manager post. And there your salary will be boomed with around, I would say 15 LPA. After 10 LPA to 15 LPA, you can see the jump. And that is the cycle we get. And after 15 years, you get to a position of a director. Like, can you imagine after like B Farm ke baad, 15 years ke baad, you would be literally doing the same thing. And after MBA, you get a job where you are the director of the company. You don't have to do the monotonous job you were doing, and you are the head of the company. So that is the difference between an MBA and a non-MBA path. You can see I have quoted here that we start with an assistant manager or management trainee position that is around 12 to 18 LPA, and after that we go to a senior manager post and then marketing head and a VP director in around 9+ years. So that is the difference between an MBA versus non-MBA path. Now everyone had a doubt regarding healthcare MBA and general MBA. All of you were asking about this, right? As Payam said, that we don't get that specific advantage if we go from a pharma background, because obviously the doctors are preferred in the healthcare field. Let's talk about it. Healthcare MBA, I see. Okay, let's just be honest. I'll tell you my perspective and why I chose core. I got offered from a GIM. Like it's the first college which brought uh, MBA in healthcare management in India. The course is running from almost 20 to 30+ years, and Johnson's and Johnson's, Philips, and you name the company, and that company comes in GIM for healthcare management course to hire students. I got the offer from there. I was very numb and I was shocked that I got it. But then I had a offer from IIM Jammu MBA core, and I had these were the two best offers I had in my hand. And I was thinking, should I go into a healthcare management or should I go into a core? And I talked to like n number of people. Like if I had to give you the numbers, I would have minimum talked to a 50 to 60%, 60 people कि मुझे HCM लेना चाहिए, कि मुझे कोर लेना चाहिए, कि मुझे हार्ड जाएगा अगर कोर लूंगी तो मुझे फाइनेंस आता नहीं है, मुझे स्टार्ट्स नहीं आता है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत होगा, कंपनीज मुझे प्रेफर क्यों करेगी जब मैंने फार्मा किया है और मैं कोर करके आ रही हूँ. तो मैंने बहुत सारे डाउट्स थे, एज यू ऑल आर हैविंग दिस डाउट्स कि हेल्थ केयर एमबीए और फार्मा एमबीए, राइट? सो उस टाइम पे आई गॉट दिस feedback from everyone that if you are not sure about, you want to make your whole life around healthcare or around pharma,
then don't go for an HCM or don't go for an healthcare MBA. I would say the same thing to all of you that B Farm के टाइम कोई बताने वाला नहीं था. B Farm के बाद B Farm के टाइम कोई ये नहीं बोलने वाला था कि तुझे अपना करियर पूरा बनाना है क्या मेडिसिन के खिलाफ. But as we all have studied 4 years, we know what is medicine. We know pharma industry के क्या हाल चल रहे हैं. I'm not saying it's bad. Definitely, if you have that passion around or for medicines or for hospital industry, I would say definitely go for it because you'll grow in that field if you have that passion. But if you are still unsure that if you want your whole career around your healthcare or pharma, you should definitely consider an general MBA, because after an general MBA, I can go back to the pharma industry. I can go back to any hospital I want. I'll give the interview there, and I maybe will be preferred over an healthcare MBA or pharma MBA person, because I know everything of an organization which they need. So I would say कि अगर तुम्हें flexibility चाहिए and you are unsure about anything, that okay शायद मैं 2 साल बाद बोर हो जाऊँ हॉस्पिटल में काम करके, या फिर शायद 2 साल बाद मुझे लगे कि शिट मैं तो इस चीज के लिए बना ही नहीं था, you should consider an general MBA, because after a general MBA you will have that option to switch to a marketing industry. तो maybe तुम लोग Blinkit में काम करो, because you have that creative mind in your hand कि तुम लोगो काम कर सकते, तुम लोगो डिजाइन कर सकते हो, तुम्हें पता है कि कंज्यूमर कैसे सोचता है, because we have studied patients and we have studied pharmacy practice, right? तो उस तरीके से दिमाग लगा के if you can go into Blinkit, you can go into marketing और healthcare industry में जाके consulting में काम करो. So there is so many options after a general MBA. Okay, so I'll answer this doubt after all this. You all put your doubts in chat box. I'll answer in the end. Okay. So after an healthcare MBA, you get to work in hospital and healthcare management. You will manage the hospital that is running. You will manage the doctors, pharmaceutical marketing and sales. अब जो MR की बात करते हैं अपन कि B Farm के बाद MRship की jobs मिल रही है, तो you will get into that. But वही डिफरेंस रहेगा कि आफ्टर एन MBA, आफ्टर एन हेल्थकेयर और फार्मा MBA, यू विल बी द हेड ऑफ दैट MRs हु आर वर्किंग इन योर एरिया. तो जितने भी 4-5-6 लोग जो तुम्हारे एरिया के हैं, वो लोगों को हैंडल करना वुड बी योर टास्क आफ्टर एन MBA ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल्स. यू गॉट इट? So you can get into healthcare consultants, health technology, med tech, anything you can get. Okay. After a general MBA, you get to work in marketing and brand management, finance, strategy. Okay. Yes, MD I have added in the further slides. You can work in operations. You know कि medicines बनती है, but do you know कि medicines आती कैसे है हमारे पास? That is considered under operations and supply chain. You can work under that. Entrepreneurship and startups, everything is there. So after a general MBA, you get to work under these options. So, okay. Now, some of them who voted in the poll had doubts regarding maths. So before that, is it clear till now? Okay, so it's not clear till now. Nobody is saying it's clear. Yeah. So Manasvi is clear till now. Okay. Vedika is also there. Okay, MD is there. Okay, only 3 students are listening to me. बाकी सब सो गए क्या? Okay. It's clear too. It's clear for everyone. Ma'am, hello. Yeah. Hello. Ma'am, there is a question to you. What you think about MBA from online or from distance learning like IGNOU? Okay, so I would never suggest an MBA online, because MBA makes your perspective. It builds everything you need in a corporate. I would never suggest. Sorry, I would like. Why would a person want to do an MBA? If तुम्हें शादी के लिए MBA करना है, डिग्री के लिए MBA करना है, कि सिर्फ सामने दिखाना है MBA किया हुआ है, you should go for it. But if you want a job, you want that career perspective, you should do an MBA offline and with the very good B school and not from any B school you are getting into. Because मैंने देखा है मेरे friends जो 3-4 साल drop लेके they are doing the work experience and they are taking the work experience and they are going for an CAT again and again because they want to get into a good B school. क्योंकि कोई भी नॉर्मल स्कूल से कॉलेज से MBA करना और एक अच्छी कॉलेज से MBA करना
I mean, when you get into all of this, you will get to know ki bro, companies are not considering every MBA, okay? They are considering people who have done it from a good big school. Now talking about the biggest fear I had, and maybe you all would be wondering about it, right? कि मैथ्स भाई 4 साल में मैथ्स नहीं किया, मैंने तो 10th स्टैंडर्ड से मैथ्स छोड़ दिया था, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव लेफ्ट इट. कैसे करेंगे भाई? it's hard. I'm 100% sure it's hard, but when you face it, it's very easy and you will start loving it, because the maths we have in CAT is around 10th standard का maths. You have percentage, ratio, ये सब चीजें you have to study. तो it's not hard, but it's more about the practice. And ये डर जो अपने दिमाग में है ना कि okay, मैथ्स मेरा तो ड्रॉप था, या फिर मैं सीए थोड़ी हूँ, मुझे मैथ्स कैसे आएगा, दिस इज बिकॉज क्योंकि 6 साल से ना मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया है, इसीलिए ये डर आ गया है. क्योंकि यार ओके, प्रैक्टिकली सोचते हैं कि कोई बंदे ने किसी ने कार सीखी, ओके, अब उसने 6 साल कार को हाथ नहीं लगाया, ठीक है. अब अगर उसको एकदम से तुम बिना कुछ कहे बोलोगे कार चलाओ, तो उसे डर लगेगा ना, वो भूल जाएगा कार कैसे चलाते हैं, या फिर कौन सा गियर कब डाला जाता है, वो भूल जाएगा, उसे डर लगेगा, राइट, अकेले चलाने में. तो वही सेम चीज अपने साथ है. Okay, Amit said. Okay, I'll answer that also in future slides. I've added that. So I was saying that कार चलाने वाला तो भूल गया होगा ना कार चलाना, तो उसे डर तो लगेगा चलाने में 6 साल बाद, जबकि उसे कार चलानी आती थी, राइट. तो मैथ्स तो हमें भी आता था 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि बेसिक मैथ्स था, पर 6 साल से मैथ्स पढ़ा नहीं है, तो वो डर आना तो स्वाभाविक है, राइट. तो इसीलिए वी हैव टू स्टार्ट इट स्लोली, एंड धीरे धीरे जब यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करोगे, वो डर चले जाएगा. मुझे भी मैथ्स नहीं आता था, मैं सामने दिखाऊंगी, मुझे फर्स्ट जब मैंने मॉक दिया था मुझे कितने गंदे परसेंटाइल आए थे, बिकॉज मैं तो मैथ्स पढ़ना छोड़ दी थी. आई वाज लाइक मैं लॉजिकल रीजनिंग दूंगी, मैं इंग्लिश कर लूंगी, मेरा ये दोनों से मेरा कैट निकल जाएगा. पर धीरे धीरे जब मैं आई तो आई गॉट टू नो कि कैट में तो सेक्शनल्स लगते हैं कि तुम्हें मैथ्स में भी एक स्पेसिफिक परसेंटाइल लाना होगा, इंग्लिश में भी लाना होगा, और लॉजिकल रीजनिंग में भी लाना होगा. तो तीनों में लाना होगा, तभी तुम एक एलिजिबल होगे अच्छी गुड बी स्कूल के लिए. तो फिर मुझे पता चला शिट, मुझे तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा. फिर 1 महीने के प्रिपरेशन के बाद आई स्टार्टेड ओके, मुझे धीरे धीरे मैथ्स पढ़ना चालू किया. फिर मैंने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश छोड़ दिया. मैंने सोचा अब ये डर हटाना है. मैंने फाउंडेशंस बिल्ड किए, मैंने सीखा रेशियो कैसा होता था, परसेंटेजेस क्या होते थे, ये सब मैंने सीखा, और फिर इतना इजी लगने लगा कि मैथ्स मेरा फेवरेट बन गया एट द एंड ऑफ द कैट और नवंबर के टाइम. सो इट्स लर्नेबल. मैं हूँ तुम्हारे सामने, मैं सच बता रही हूँ, मुझे किसी की कसम दिलवा लो, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, मेरा सबसे डर, बट मैं लिटरली बता रही हूँ, लाइब्रेरी में मेरे सामने लिखा होता था आई लव मैथ्स, ताकि मेरे दिमाग में जाए कि ओके मैथ्स इज इजी, यू लव मैथ्स, यू कैन डू इट. सो दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन आई हैड. It is a learning thing, and it is very easy. You all can do that. Talking about next slide, my maths journey, my quants journey. So when I did my sectional, I gave sectional, I scored 32 percentiles in my first mocks of quants. So उसके बाद धीरे धीरे जो मैंने बताया, मैं धीरे धीरे फाउंडेशंस बिल्ड किया, मैंने टेबल्स वापस से देखे कि ओके क्या होता था, फॉर्मूला रूट का क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता था. तो धीरे धीरे 88 परसेंटाइल तक मैं पहुंची, एंड आई स्कोर्ड कैट में 88 परसेंटाइल इन क्वांट्स. सो एक्सेप्ट द गैप, यू डिडंट स्टडी 6 साल द मैथ्स, तो एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. कंसिस्टेंसी करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे तो हो जाएगा. ऐसा नहीं कि ओके एक हफ्ते में 4 घंटे कर लिया मैथ्स हो गया. रोज करो, भले ही 30 मिनट्स करो, 1 घंटा करो, बट एक कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करो, यू विल गेट इट. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली और यूज द राइट रिसोर्सेस. इवन आई हैव okay, we'll talk about it in the last, okay, when we'll do a question and answer sessions. Amit, just remind me this question. This is a very nice question to ask. Okay, so use the right resources. If you are unable to get a good coaching, you can get all the resources from YouTube. मैंने मेरे Instagram पे भी बहुत सारे free resources का वो डाला हुआ है reels. You can contact me there. You can contact me on LinkedIn for the resources, or either join a good coaching. If you are that kind of
पर्सन जिसको गाइडेंस चाहिए कि ओके क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो यू शुड ज्वाइन अ गुड कोचिंग. आई विल रिकमेंड यू दैट आल्सो इफ यू वांट. और नहीं तो देयर आर immense full of free resources available in YouTube. You can get there and you can start now also if you want to study. And give mock test. Literally, I'm telling mock tests are gold. We'll talk about that in further slides. I have added specific slide for a mock test. Talking about from exam day to offer letter. Now, you all must be thinking कि okay CAT दे दिया या फिर एग्जाम दे दी ना, एग्जाम में आ गए जैसे जीपैट में होता है, मार्क्स आ गए और एडमिशन मिल गया काउंसलिंग सेशन के ऐप राउंड्स के थ्रू. बट इट इज नॉट लाइक दिस. प्लीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल लो. MBA इज इक्वल्स टू UPSC. ओके, बट वो इतना UPSC इज नॉट, UPSC इज वेरी हार्ड, MBA इज डूएबल. यू राइट योर एग्जाम. ओके, जैसे नवंबर में मैंने 30 नवंबर को मैंने कैट दिया था. मेरा नवंबर में मैंने कैट दिया, फिर कैट का रिजल्ट अराउंड एंड ऑफ दिसंबर में आ चुका था. फिर धीरे धीरे सारे कॉलेजेस से ना, जो कॉलेजेस अपन अप्लाई करते हैं वो शॉर्टलिस्ट देने शुरू करते हैं कि ओके बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर या फिर बेस्ड ऑन योर डिफरेंट कैट्स यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. ओके, तो वहां से शॉर्टलिस्ट आनी शुरू होती है. फिर उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड एंड वैट राउंड. ग्रुप डिस्कशन में 8 से 10 लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं. तुम्हें एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है. जैसे हमें मिला था कि इंडिया में ये जो डिजिटल पेमेंट एप्स चालू है ये विलेजेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक ये क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, एंड व्हाट शुड अ गवर्नमेंट डू टू मेक देम रीच विलेजेस. तो अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कितना हार्ड टॉपिक था, इस पे क्या ही बोला होगा. बट इट्स लाइक तुम्हें 20 मिनट्स दिए जाते हैं, 10 मिनट्स दिए जाते हैं. तुम प्रिपेयर कर लो, तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे क्या थॉट्स आ रहे हैं सब लिख लो. फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है. तो 10 लोग बात करते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसमें तुमने सिर्फ 2 बार अपने पॉइंट्स रख दिए ना, तो इट इज यू विल गेट इनफ पॉइंट्स. बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, फिर उनको नेगेटिव पॉइंट्स भी मिल जाते हैं. और कुछ लोग होते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर उनको तो वैसे ही मार्क्स नहीं मिलते. तो ऐसा बोलो कि अच्छा बोलो, और ऐसा बोलो कि ओके यू विल गेट इन द नजर ऑफ द इन्विजिलेटर जो तुम्हें पॉइंट्स दे रहे हैं. जैसे 2-3 बार अपने पॉइंट्स रख दो. और कुछ नहीं भी समझ रहा है ना भाई, अगर मैं बता रही हूँ मेरा पहला GD में आई वॉज नॉट श्योर कि क्या बोलना चाहिए. तो जो बाकी लोग बोल रहे थे ना, मैं 3-4 लोगों ने बोल दिया, मैं 3-4 लोगों का अक्यूमुलेट करके सेम पॉइंट थोड़ा अपना लगा के बोल देती थी ताकि कुछ तो बोलूं. ओके, तो इट्स लाइक दैट. इन दैट ऑल्सो यू गेट अ टॉपिक, उस पर तुम्हें लिखना होता है कि तुम व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द सेम. फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है. तो इंटरव्यू में 2 या 3 पैनल होते हैं. तुम जाते हो अंदर, फिर वही UPSC वाली वीडियोस तुम लोगों ने देखी होगी ना, सेम वैसा ही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और क्या तुमने फार्मा किया है तो फार्मा के बाद MBQ. एज समवन आस्क्ड मी कि बहुत सैचुरेशन हो जाएगा ना फार्मा के बाद MBA करेंगे, फार्मा MBA तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा. तो वहां तुम्हें सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि फार्मा किया है ना तो नॉर्मल MBA क्यों करना है तुम्हें. तो वहां तुम्हें कन्विंस करना आना चाहिए. अगर तुमने वहां कन्विंस कर लिया ना तो तुम्हें फुल ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएगी. तो मैंने मेरा आंसर बना लिया था कि ओके मैं कॉलेज में सेक्रेटरी थी, एज माय जूनियर इज आल्सो हियर, ही नोज कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल वगैरह होता था. तो वहां मैं सेक्रेटरी थी, मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थी. तो मैंने अपना आंसर बना लिया था कि ओके उस टाइम पे जब मैंने ऑर्गेनाइज किए इवेंट्स या फिर कुछ और किया, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है मैनेजमेंट की तरफ. आई डू नॉट हैव दैट मच इंटरेस्ट अलाइन टुवर्ड्स रिसर्च. आई वांट टू मैनेज द रिसर्च which the B.Pharm students are doing. So ऐसा करके we have to make an answer that is convincing for an interviewer, because उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि तुमने फार्मा के बाद MBA क्यों किया. बस वही तुम्हें अपना कन्विंस करवाना है कि भाई मैं हूँ वर्थ इट, आप मुझे लो, मुझे पॉइंट्स दो ताकि मैं एक अच्छी B स्कूल में आ पाऊँ. तो पर्सनल इंटरव्यू की बात हो गई. इसमें इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया कि GD में तुम्हारा क्या था, इंटरव्यू में क्या था, तुमने मार्क्स कितने लाए पेपर में, वो सब सिलेक्ट होता है. पूरे मार्क्स पूरा ऐसा 100 में से पूरा स्कोर बनता है, और उसके बाद डिसाइड होता है कि तुम्हें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. उसमें भी अच्छा मेरे इंटरव्यू के बारे में किसी को जानना होगा ना, तो लास्ट में विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट the exams, as Payam mentioned that I have cracked all these exams. So it was very easy. If you prepare for CAT, you are already prepared for any exam you name. कोई भी एग्जाम तुम बोल दो कि भाई ये वाले एग्जाम में दे देगी क्या, आई एम रेडी बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर CAT. तो CAT is all about
द एग्जाम्स लाइक इंडिया में जितने कॉलेजेस हो गए ना वो सारे कॉलेजेस कैट एक्सेप्ट करते हैं। आईआईएम्स, कोई भी बड़े कॉलेजेस, छोटे कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस कैट एक्सेप्ट करते हैं। कैट में 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड वीएआरसी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स, जो कि क्वांट्स बोला जाता है। एंड थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग, विच इज कॉल्ड एलआरडीए, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें 3 होते हैं। और वीआरसी तो पता है, इंग्लिश होता है, उसमें ग्रामर वगैरह होता है और passages आते हैं. We have to read the passage and answer on the basis of the passage कि which option we think would be right. मैथ्स में वही पूरे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में कभी पजल्स आ जाते हैं, कभी या फिर कोई स्पेसिफिक सेट आ जाएगा कि अच्छा चार्ट बना के दे देंगे, पाई चार्ट दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, वो सब आ जाता है. तो कैट होता है नवंबर और दिसंबर में. अगर तुम लोगों को सही में एमबीए के लिए प्रिपेयर करना है, यू हैव ओनली 3 to 4 months लेफ्ट. कितने बच्चे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 5 months you have to crack CAT and 5 months are enough because मैंने भी मेरी प्रिपरेशन जुलाई में ही स्टार्ट की थी. कैट थोड़ा हार्ड होता है और धीरे धीरे वो अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है कि ओके कभी वो बहुत इजी आ जाता है. जैसे 2024 का बहुत इजी कैट था, मुझे रिग्रेट हो रहा है मैंने फाइनल ईयर में क्यों नहीं प्रिपेयर किया. और कैट 2025 बहुत टफ था. वो मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट और टफेस्ट कैट अभी तक जो बना था, बिकॉज उन लोगों ने वो कंपेंसेशन किया कि ओके बहुत इजी आ गया था कैट 2024, तो अभी हार्ड बनाना है. तो मुझे लगता है कैट 2026 इजी आएगा बिकॉज पिछला कैट बहुत हार्ड आ गया था. तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी जो मैंने मिस की थी. यू ऑल कैन प्रिपेयर फॉर इट. हाँ, यू कैन गिव. मैंने नहीं दिया था फाइनल ईयर में. यू शुड गिव, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से, और यू शुड गिव कैट इन योर फाइनल ईयर. टॉकिंग अबाउट दैट से ना जेवियर्स की कॉलेजेस होती है, वो लगती है एक्सिलराई और एक्साइम, ये दूसरी, और जीआईएम भी जैट से लगती है. बहुत कॉलेजेस है जो एग्जैट भी एक्सेप्ट करती है. कैट के बाद जैट ही होती है एग्जाम, जो अच्छी होती है. ओके, तो जैसे कैट ना 3 hours का होता है, जैट में 4 hours का होता है, और इसमें एक और सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग में ना ये पूछा जाता है कि तुम्हें कोई सिचुएशन दे देंगे कि शिट ये सब हो गया है कंपनी में, अब अगर तुम मैनेजर होते तो तुम क्या करते. तुम्हारी मतलब एक थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है कि व्हाट यू वुड हैव डन. तो उसमें भी 5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से तुम्हें सिलेक्ट करना होता है कि अच्छा तुमने ये किया होता है ऐसा करके. तो दैट इजी पड़ जाता है बिकॉज कैट से, बिकॉज उसमें डिसीजन मेकिंग सेक्शन आ जाता है. बाकी 3 तो सेम होता है कैट से. तो जैट में स्कोरिंग इजी हो जाती है और 4 घंटे का होता है, तो यू हैव इनफ टाइम कि यू कैन सॉल्व एंड थिंक एंड धीरे धीरे सब. तो जो स्लो सॉल्वर होते हैं ना कि ओके उनका आंसर आ जाता है बट धीरे से आता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो उनके लिए दैट इज द बेस्ट एग्जाम टू हैव. टॉकिंग अबाउट स्नैप, तो स्नैप सिम्बायोसिस के कॉलेजेस, जितने भी सिम्बायोसिस के कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो सारे लगते हैं. ये होता है दिसंबर में और ये बहुत इजी होता है. इट्स जस्ट 1 hour एग्जाम और 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट्स में सॉल्व करना है. बट जो क्वेश्चन आते हैं, तुम अभी भी मैं बोल रही हूँ, इसके रख के तुम जाओगे ना सॉल्व करने स्नैप का एक मॉक देके, यू विल बी लाइक ओके ये तो बच्चों के क्वेश्चन है, ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे. बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं स्नैप में. और 60 में से अराउंड तुम्हें 45 या 50 कुछ मार्क्स लाने होते हैं टू क्लियर द कट ऑफ द टॉप सिम्बायोसिस कॉलेजेस. एंड इट इज वेरी इजी. आई एम सेइंग ये उनके लिए बेस्ट है जो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, टाइम जल्दी जल्दी इजीली सॉल्व हो जाता है ना उनसे, उनके लिए एग्जाम बेस्ट है. टॉकिंग अबाउट एनमेट, तो नारसी मुंजी तुम लोगों ने सुना होगा बिकॉज एवरीवन was asking me about pharmaceutical management. So everyone would have heard NMIS in pharmaceutical management, right? Yeah. So for that college, you have to give NMAT. वो CAT एक्सेप्ट नहीं करेगा, ZAT नहीं करेगा, SNAP नहीं करेगा, वो NMAT ही एक्सेप्ट करेगा. उसकी प्रॉपर एग्जाम होती है. वो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, ये 3 month चलती रहती है. एंड यू कैन गिव 3 times द सेम एग्जाम. ओके, और हाँ स्नैप भी यू कैन गिव 3 times, और उसमें से जिसमें भी तुम्हारा बेस्ट स्कोर आया ना वो कंसिडर किया जाता है. और NMAT, okay, bro, it's really doing good. HCMHRD is it's the topmost second college of we get through Snap. You get access to like Google and this type of companies to get into HR. Okay, so it's really good course. If you can crack Snap and then the interview, you should definitely opt for HCMHRD. One of my friend is literally studying in HCMHRD. उसका college start हो गया अभी. तो एनमेट में अराउंड 240 या 250 मार्क्स का पेपर होता है. उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, बट ये भी इजी होता है, बहुत इजी होता है स्नैप और एनमेट एज कम्पेयर टू कैट और जैट.
तो ये तो तुम, अच्छा तुम अगर नहीं भी प्रिपेयर्ड हो ना, तो अगर तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं तो और तुम सिर्फ नॉर्मली प्रिपेयर करना चाहते हो, स्नैप और एनमेट तो दे ही देना, वो सब बहुत इजी एग्जाम्स होते हैं। और टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र सीईटी, तो यहाँ महाराष्ट्र से कौन कौन है? Okay, we have ample amount of people from Maharashtra. Okay, Amit is from Sikkim. So Amit, in Maharashtra ना एक CET करके एग्जाम होता है जो सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में तुम्हें एक्सेस दिला देगा इफ यू गिव CET, ओके। तो महाराष्ट्र में एक बेस्ट कॉलेज है JBIMS, जिसकी फीस इज अराउंड 6 और 8 लाख समथिंग, और वहां से तुम्हें एवरेज पैकेज लगेगा 28 लाख 26 लाख का। तो वो कॉलेज के लिए सब लोग ये MHCET के एग्जाम देते हैं, जबकि ये एग्जाम के थ्रू तुम्हें महाराष्ट्र के कोई भी MBA कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। तो और ये मैं बता रही हूँ बहुत इजी एग्जाम है, मतलब तुम लोग सोच लो, मुझे मैथ्स नहीं आता था, मैंने 99.02 नहीं 99.02 थे कि 2 थे, आई डोंट नॉट रिमेम्बर, मैंने उतने परसेंटाइल स्कोर कर लिए, तो सोच लो कितना इजी एग्जाम होगा। बट वही है कि इसमें 99.9 तुम्हें लाने पड़ेंगे JBMS चाहिए तो, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी, लिटरली इजी, तुम सो के भी जाओगे तुम्हारा 90 आ जाएगी, तो ऐसा एग्जाम होता है। तो वेरी इजी, फेब और मार्च में होता है, और अगर तुम्हें महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो ये एग्जाम यू कैन गिव। नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स जो कैट में या कोई भी एग्जाम में आते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके। सो ये है इंग्लिश, इसमें तुम कैसे प्रिपेयर करोगे? somebody was asking talk about CAT strategy preparation something, तो इसमें अभी से I'm saying if you are sure you have to prepare, और if you are unsure मैं तो बोलूंगी आदत डाल लो, रोज एक न्यूज़पेपर या फिर कोई भी नॉवेल भी if you start reading, right, it will help. हैबिट, अपन लोगों को एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है चीजों को, तो वो चीजों को हैबिट को बिल्ड करने के लिए तुम रोज कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दो, एक एडिटोरियल पढ़ो या फिर पैसेजेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ना चालू कर दो। टॉकिंग अबाउट आगे कि और क्या होता है पैसेजेस के अलावा, उसमें पैराजम्बल्स होते हैं, वो कैब आएगा कि ओके ये ग्रामर था, यहाँ पे आर आएगा कि वॉट एवर, मतलब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है अभी, बट ग्रामर पूछते हैं वो कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ या वॉट एवर, तो वो सब चीजें आती है। तो यू कैन स्टार्ट डूइंग पैराजम्बल्स, मतलब गूगल में बोलो गिव मी पैराजम्बल्स फ्री के रिसोर्सेज के, इफ यू वांट फ्री रिसोर्सेज यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टा, मैं तुम लोगों को वहां भेज दूंगी, देयर आर एम्पल इनफ ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। तुम और इसमें रोज तुम्हें सेक्शनल देने हैं, अगर तुम प्रिपेयरिंग स्टार्ट करते हो, तुम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो या फिर खुद से प्रिपेयर करते हो, तो तुम मॉक खरीदोगे, उसमें तुम सेक्शनल दोगे, तो उसमें एटलीस्ट VARC में 80% 70% टारगेट करना शुरू कर दो। अगर वो करोगे, रोज रोज पढ़ोगे और रोज पैसेजेस सॉल्व करोगे, यू विल डेफिनेटली अपने आप VARC इज दैट इजी सेक्शन जिसमें तुम रोज चीजें करने से अपना जो हैबिट बनाओगे ना, एनालाइजिंग हैबिट, वो चीज तुम्हें उस चीज में काम आएगी। सेम चीज DLR में लागू होती है कि DLR में रोज ना सुडोकू, जो अपन बचपन में मम्मी बोलती थी सॉल्व करो न्यूज़पेपर के, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, या ककूरो होते हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, रोज करो, मस्ती में कर लो, खाना खा रहे हो साथ में न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओ या फोन में ककूरो खोल लो, उसके रूल्स सीख लेना एक बार और वो सॉल्व करना चालू कर देना, ताकि वो एनालाइजिंग हैबिट बन जाए। और वही हैबिट आई एम टेलिंग यू, मैंने रोज ककूरो सॉल्व किए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मैंने रोज सुडोकू और ककूरो सॉल्व किए हैं, और उस वजह से मेरे को सेट सॉल्व करने में, जो लॉजिकल रीजनिंग के सेट आते हैं ना, उसमें बहुत इजीली हो जाता था। इफ आई वुड हैव नेवर डन दैट, तो फिर मेरा वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरी एबिलिटी, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, एनालिटिकल एबिलिटी की, ओके इसके बाद ये कर सकते हैं, वो क्रिएट ही नहीं हो रही थी अगर मैंने वो सॉल्व नहीं किया था। तो अगर यू आर सीरियस अबाउट डूइंग एन MBA, स्टार्ट रीडिंग डेली, स्टार्ट सॉल्विंग ककूरो एंड सुडोकू डेली। 15 मिनट नहीं लगेगा दोनों चीजों के लिए, बट तुम्हारी वो एबिलिटी बन जाएगी जो कैट में चाहिए रहती है, ओके। और DLR सेट सॉल्व करो। इवन हमारे सर पता है क्या बोलते थे कि एक सेट को 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, जितना टाइम तुम्हें देना है ना दो। तुम्हें नहीं हो रहा है सॉल्व, फिर भी तुम टाइम दो, पूरी रात बैठो, अगले दिन बैठो, तुम क्वेश्चन का आंसर मत देखो कि सॉल्व कैसे हो रहा है, क्या करना है। अगर तुमने दिमाग लगा लिया ना कि अच्छा ठीक है इसके बाद ऐसा करते हैं, 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा तुम्हें सॉल्व करने में, पर तुमने अगर वो खुद से सॉल्व किया ना, तुम्हारी वो एबिलिटी बन जाएगी जो मुझे चाहिए। वो हमारे सर बोलते थे कि कभी आंसर मत देखो,
तो सॉल्व करो 2 सेट्स, रोज सॉल्व करो, नहीं हो रहा है उसको ही अगले दिन सॉल्व करो, पर रोज सॉल्व करो, सोचो कि क्या हो सकता है। अच्छा इसके, अच्छा ये नहीं कर सकते ना, नेक्स्ट नेक्स्ट डे कुछ और कोशिश करो कि अच्छा ये तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके आंसर आ ही जाता है, तो वो चीज करो। और अपना जो अटेम्प्ट, अब देखो 4 या 5 सेट आते हैं सिर्फ पूरे कैट के पेपर में, 4 सेट आएंगे डीएलआर के या 5 मैक्स टू मैक्स, तो उसमें से भी तुम्हें पूरे अटेम्प्ट नहीं करना होता है क्योंकि परसेंटाइल का खेल है। तो 5 में से तुम्हें सिलेक्ट करना होगा कि ओके 2 मुझे करना है, तो मुझे 2 कौन से करने हैं, मुझे ये वाला इजीली हो जाएगा तो मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो वो चीज भी तुम्हें सीखनी होगी धीरे धीरे। और वही प्रिपरेशन फेज में तुम सीखते हो कि ओके मैं अपना अपना पसंद का जो मुझे आता है, जैसे मुझे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स करके एक सेक्शन होता है डीएलआर में, मुझे वो बहुत पसंद था, तो पेपर में वो आया, और अरेंजमेंट करके था वो भी आया पेपर में। तो ये दो, बाकी 3 जो थे ना वो मुझे मुझे नहीं पसंद थे, वो जो टॉपिक्स थे, और वो बहुत हार्ड भी आए। तो ये जो 2 आए थे ना, वो 2 मैंने फट से सॉल्व कर लिया बिकॉज मुझे ये वाले टॉपिक्स पसंद थे। तो ये सोचो कि तुम्हें 5 में से सिलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा तुम्हें सॉल्व करना है, कौन सा नहीं। ये सारी चीजें तुम धीरे धीरे प्रिपरेशन फेज में सीख जाओगे, जब प्रिपेयर करने लगोगे, मॉक दोगे तब भी सीख जाओगे। और फिर क्वांट्स आता है, तो क्वांट्स में तो मैंने पहले ही बोला कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, मास्टर्स बेसिक फर्स्ट, फाउंडेशन बिल्ड करो, कंसेप्ट सीखो। ऐसा नहीं कि ओके ये सीख लिया क्वेश्चन पे बोर्ड पर टूट पड़े, सीखो पहले यार कैसे होता है, परसेंटेज भूल चुके हैं अपन सब, पूरा सब सीखो धीरे धीरे। फाउंडेशन, बच्चों वाली वीडियोस देखने लगे ना वो भी देखो, मैंने तो देखी है, मतलब मैंने लिटरली लिखा है कि क्लास 10th का परसेंटेजेस कैसे होता था, ताकि मुझे पता चले कि बेसिक में क्या होता था। कि वो लोग तो कैट वाले तो बेसिक से सिखाएंगे नहीं, पूरा बीच में से चालू करेंगे, और बेसिक्स अपन को आता नहीं है, तो मैंने तो पूरे बेसिक्स पहले पढ़े, फिर मैंने कैट की वीडियोस देखी है ताकि मुझे पता चले कि करना कैसे। रोज 30 मिनट्स मैथ सॉल्व करो। अगर मैथ से डर है तो भाई 1 घंटा मैथ्स लेके बैठ जाओ, आई एम टेलिंग यू। अगर तुमने आज से लेके नवंबर या कैट तक 1 घंटा मैथ्स कर लिया, तो फिर तुम आईआईएम में मुझे मिलना, फिर अब नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हारी सीनियर होगी, ठीक है। उसके बाद ओके, तो मैथ्स में ना 3 टाइप के टॉपिक्स होते हैं, एक ज्योमेट्री, एक अलजेब्रा और एक अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में वो सब आता है, रेशियो, परसेंटेजेस वगैरह। तो 50% ऑफ द जो पेपर होता है ना वो अरिथमेटिक से आता है। तो ट्राई टू मास्टर अरिथमेटिक, अगर तुमने वो कर लिया तो बाकी सब चीजें अगर थोड़ा कम भी करोगी तो हो जाएगा। मैंने भी अरिथमेटिक पे पहले फोकस किया, फिर अलजेब्रा पे। ज्योमेट्री तो मैं पढ़ के ही नहीं गई थी कैट में, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा था, मेरे को वो कंसेप्ट पूरे फॉर्मूले याद रखना मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने इतना ही कर लिया था तो मेरे लिए वो बहुत था। तो मैंने मैथ पूरा अरिथमेटिक पढ़ा क्योंकि वो मुझे बहुत ईजी लग रहा था, मजा आ रहा था मुझे सॉल्व करने में। हाय चैताली, हाउ आर यू। सो मैथ्स मैंने वो किया, अरिथमेटिक प्रिपेयर किया, और मैंने फिर अलजेब्रा किया। फिर अलजेब्रा के टाइम पे मुझे थोड़ी चीजें समझ में आने लगी तो मैंने अलजेब्रा भी किया। मैंने ज्योमेट्री पूरा छोड़ दिया था, तुम लोग मत छोड़ना, इफ यू वांट टू स्कोर अच्छा तो मैथ्स करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, 1 घंटा सॉल्व करना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 22 क्वेश्चन आते हैं कैट में, और ऐसा नहीं है तुम्हें 22 के 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुमने 10 क्वेश्चन भी सही सॉल्व कर लिए ना, यू आर ऑलरेडी 90% अबाउट एवरीवन। तुम्हें ऑलरेडी 92-93% आ जाएगा कैट में अगर तुमने 10 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज वाला खेल और परसेंटाइल वाला खेल। इसलिए मैं बोल रही हूँ कैट इज इजी, क्योंकि 3 लाख बच्चे कैट देते हैं, उसमें से 1-1.5 लाख तो ऐसे ही दे रहे हैं, बस बीबीए वाले जो है, बस उनके पास ऑप्शन नहीं, जैसे अपने पास एमफार्म करने का ऑप्शन है, उनके पास एमबीए करने का ऑप्शन है, बिना प्रिपरेशन के कोई भी कॉलेज लेना है उनको तो वो लोग दे देते हैं, 1.5-2 लाख लोग ऐसे ही। वो जो अपना असली जो कंपटीशन होता है ना वो 50,000-1 लाख लोगों के साथ होता है, बिकॉज बाकी लोग तो ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर लिया तो ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ 90% ऑफ द पीपल। और यू ऑल नो मेरा 32 से 88% आई वाला खेल, तो आई एम टेलिंग यू, आई एम अ लिविंग प्रूफ। Start solving now. Okay, I've answered Jeffrey this question, right? Ki NIPER is only for like research oriented people, and if you want to go for an MBA, I would always, even in मेरे से नींद में पूछोगे, I would say go for एंड कॉलेज जिसमें मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है, नॉट अ रिसर्च स्पेशलाइजेशन, बिकॉज कंपनी भी वही सोच के आएगी, राइट? कंपनी को मैनेजमेंट लोग हायर करना है तो वो ज्यादा पैसा मैनेजमेंट कॉलेज में देगी, ना कि कोई रिसर्च कॉलेज में जान, भले वो नेशनल इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंस वाला कॉलेज है नाइपर, बट स्टिल अ कंपनी विल थिंक ना कि इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। डू यू नो सहिस्ता दैट रिसेंटली नाइपर ने अपना फार्मा एमबीए वाला कोर्स बंद कर दिया? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कौन सा वाला नाइपर था, बट उसने अपना फार्मा एमबीए कोर्स बंद कर दिया। या करेक्टली सेट पाया।
तो बिकॉज उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था और ना जॉब्स आ रही थी ना कंपनीज आ रही थी, तो उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गेट द पीपल जो एमबीए वालों को दिमाग में लगता है, राइट? या ओनली मोहाली एंड हैदराबाद प्रोवाइड्स, बट हैव यू एवर थॉट दैट अहमदाबाद ने क्यों बंद किया? इस तरीके से सोचो ना कि ओके देयर आर 2 नाइपर व्हिच प्रोवाइड्स, बट 3 प्रोवाइड करते थे, बट एक ने बंद क्यों किया जबकि स्टार्टिंग से ही वो प्रोवाइड करता था? कुछ ना कुछ इशू रहे होगे ना। अभी ये सेशन के बाद ना जाके वो पढ़ना आर्टिकल्स उसके, क्योंकि कंपनीज वर नॉट प्रेफरिंग नाइपर। आई फील इन द कमिंग 5 और 10 years ना बाकी 2 नाइपर भी अपना एमबीए कोर्स बंद कर देंगे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट पीपल गेट प्लेस्ड इन अ मैनेजमेंट पोजीशन जो एक एमबीए के बाद ऑप्शन मिलना चाहिए। Okay, MD will talk about it in the question and answer wala session. Yes, it is possible, Prachi. It is possible. Just do it with consistently. Or are you from final year, or are you like did BPharm completed? We will talk about it, Saista, in further slides. Okay, Prachi, you can definitely get into an IIM ABC. One of my friend is in IIM Kozhikode and IIM Calcutta, and उन्होंने फाइनल ईयर में किया था। भले वो उसमें से एक बीएससी एग्रीकल्चर वाली थी शायद, बट स्टिल यू आर एबल टू गेट इनटू एन IIM ABC बिकॉज दे प्रेफर IIM की बीफार्म या फिर कोई और फील्ड के लोग उनके पास आए, बिकॉज बीबीए और इंजीनियरिंग वाले लोगों से वो तंग आ चुके हैं, उनके पास डाइवर्सिटी नहीं है। Is MBA core good for BBA to go into healthcare? Yes. Are you sure, yet Shraddha, you have to make a career in healthcare only? Why are you not preferring any other companies or field? Okay, so we'll move ahead. What should be your winning strategy to get into a good B school? Okay, सबसे पहले 1-2 महीना एज आई सेड फाउंडेशन बनाओ। एनसीईआरटी का बेसिक एनसीईआरटी का जो मैथ्स होता है बेसिक वीआर से होता है, वो स्टार्ट प्रिपेयरिंग का पूरा सॉल्व करना स्टार्ट करो। स्टार्ट रीडिंग डेली। फिर धीरे धीरे जब यू आर अहेड, लाइक तुमने पढ़ लिया है थोड़ा और नाउ यू आर लाइक ओके आई कैन गिव मॉक, भले कम आए मार्क्स बट आई कैन गिव मॉक्स, तो स्टार्ट गिविंग सेक्शनल, स्टार्ट गिविंग मॉक्स और मॉक्स खरीद लो। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स आफ्टर दिस स्लाइड। 2 or 3 slides आर लेफ्ट होंगी, ओके? और फिर उसके बाद जब तुम प्रिपेयर करोगे, मॉक्स होगे, मॉक्स को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। फिर जब तुम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, मॉक्स दे रहे हो, उसके बाद जब टाइम आएगा तो उस टाइम पे तुम्हारा पूरा रिवीजन चलेगा नवंबर और अक्टूबर में। और सबसे मेन चीज आई वुड से, देखो अभी कुछ लोग यहाँ पे है ना जो साथ में बी फार्म कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, राइट? तुम लोगों के पास टाइम नहीं होगा, पूरा दिन तो कॉलेज जाना होता है, सुबह 9 बजे से शाम के 5-6 बजे तक कॉलेज रहता है। तो सुबह ना सिर्फ इतना काम करो कि DLR सॉल्व कर लिया, ककूरो सॉल्व कर लिया चाय पीते पीते, एक रीडिंग आर्टिकल रीड कर लिया चाय पीते पीते, कुछ भी कर लिया। सुबह ये चीज का काम अपना निपटा दो और फिर रात को जब आते हो कॉलेज से थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद सेट्स लेके बैठो कि पैसेज ले लिया, पैसेज रीड कर रहे, पैसेज रीड करके ओके दिस कैन बी द आंसर, दिस कैन नॉट, ऐसा करके पूरे सेट्स लेके सॉल्व करो रात में। और इफ यू आर इन दैट फेज कि तुम्हारा पेपर पास आ रहा हो, यू आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मॉक और यू आर गिविंग मॉक, तो स्टार्ट एनालाइजिंग मॉक। ठीक है, मैं बताऊंगी मैंने ये गलती की थी, तुम लोग मत करना। मुझे हमारे सर हमेशा बोलते थे कि तुम मॉक दे रहे हो ठीक है चलेगा, बट मॉक दे रहे हो उसके बाद एनालाइज करना जरूरी है। अगर तुमने मॉक को एनालाइज नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया, कोई मॉक देके कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारा 99 भी आ गया और तुमने एनालाइज नहीं किया तो फिर वो मॉक वेस्ट है। यस, मैंने बी फार्म के बाद किया था बट आई एम रिग्रेटिंग इट नाउ। तुम लोग फाइनल ईयर में कर लेना, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तुम लोगों को बताने वाली मैं हूँ। फाइनल ईयर से प्रिपेयर कर लेना ताकि अगर फाइनल ईयर में नहीं भी हुआ तो यू हैव दैट ऑप्शन कि तुम बी फार्म के बाद भी एक बार फिर से कैट दे सकते हो और तुम्हारा गैप ईयर इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। ओके, तो मैं ये बोलूंगी अगर तुम लोग ये पोजीशन पे हो कि तुमने 1-2 महीना प्रिपेयर कर चुके हो, स्टार्ट टेकिंग अ I'll tell. Ask me this in the question and answer वाला चीज, okay? तो start take a mock every week if you have started preparing, and if you are taking a mock, analyze, वही बोल रही हूँ, analyze करना, ये कोशिश करना। if मुझे 10 मार्क्स में मिले हैं ना
तो भी एनालाइज करना है, ऐसा नहीं डिमोटिवेट होके बैठ गए। 10 मार्क्स मिले हैं, क्यों मिले 10 मार्क्स? मैंने जैसे बताया कि सेट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एलआरडीआई में सिर्फ 5 सेट आते हैं, कहीं मैंने गलत सेट तो नहीं चूज कर लिया, कहीं मैंने ऐसा सेट चूज कर लिया जिसमें मेरे को पूरा टाइम जो 40-50 मिनट जो भी होता है वो मेरा पूरा टाइम वो एक सेट में ही चले गया। कहीं ये तो नहीं हुआ मुझे सेट सिलेक्शन सही करना होगा। अच्छा, कहीं मैंने पैसेज चूज किया और उसमें एक साइंस का पैसेज था और एक इंजीनियरिंग का पैसेज था और एक शायद पॉलिटिकल पैसेज था, और मैंने सोचा कि अच्छा मैं तो साइंस की हूँ तो मैं साइंस वाला ही रीड करूंगी। पर साइंस वाला रीड करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि साइंस वाला वाज द टफेस्ट पैसेज ऑफ द होल वीआरसी सेक्शन, कि उसमें घुमा के क्वेश्चंस तो नहीं कहीं पूछे थे, और वही गलती हो गई कि मैंने मेरा कंफर्ट जोन देखा और मैं उस पर कूद पड़ी और मेरा पूरा टाइम उसमें चले गया। तो यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड मॉक दिया है उसके बाद एनालाइज करो कि गलती कहाँ हुई है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं थी, कहीं टाइम गलत सेट चूज कर लिया, कहीं टाइम ज्यादा दे दिया। ये सब चीजें एनालाइज करोगे तो ही पेपर में दिमाग में क्लिक होगा कि अच्छा शिट ये साइंस का है बट मुझे एक बार क्वेश्चन रीड करने हैं कि कहीं गलत कि घुमाने वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिए। तो ये सारी चीजें तुम्हें तब काम आएगी जब तुम एनालाइज करोगे, ठीक है? तभी पता रहेगी ना तुम्हारा वीक सेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन क्या है। और फाइंड योर स्टडी टाइप, ठीक है? मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। बहुत बार होता था कि मुझे नहीं करने का मन करता था, बहुत बार ऐसा हुआ मेरा मैथ्स मैं फेड अप हो गई कि मुझे मैथ्स तो करना ही नहीं, अब मुझे नहीं करना है। पर मेरा बैकलॉग हो गया था, एज आई सेड कि मैंने 1-2 मंथ तो मैथ्स टच भी नहीं किया था। तो एक और मेरी मतलब फ्रेंड थी, वो मुझसे छोटी थी, शी वाज प्रिपेयरिंग इट विद बीबीए। तो मैं उसके पास चले जाती थी कि यार तू पढ़ रही है ना, मैं तेरे साथ बैठ के पढ़ लेती हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं हो रहा है पढ़ने का मन। तो हम साथ में बैठ के सॉल्व कर लेते थे ताकि कहीं ये ना हो कि मेरा वो 1-2 घंटा वेस्ट हो जाए। तो हम लोग ये करते थे। तो फाइंड योर स्टडी ड्राइव, तुम्हारे कॉलेज में होगा कोई ना कोई होगा जो साथ में तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, और उसके साथ स्टार्ट करो। क्योंकि कभी कभी होगा ऐसा टाइम कि भाई तुम्हारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर तुम्हारी कंसिस्टेंट जो चीज थी तुम जो कर रहे थे वो टूट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने दोस्त के साथ जाके पढ़ लो, ऐसा नहीं रोज ही पढ़ो और जाके मम्मी को बोल रहे हो कि पढ़ने जा रहे हो और जाके मस्ती कर रहे हो। बट स्टडी ट्राइब इज इम्पोर्टेंट, एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, एंड गिविंग मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर, मतलब कैट को कितना वेटेज देगे, 10th-12th को कितना देगे, क्या तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए। तो जो तुम एग्जाम देते हो ना आईआईएम्स में, उसको 40% वेटेज ही होता है। जैसे मैंने कैट दिया, मेरा जो कैट का स्कोर था, जितने परसेंटाइल आए, उसको सिर्फ 40% वेटेज दिया गया। फिर उसके बाद 15% और 20% वॉज द वेटेज फॉर 10th एंड 12th मार्क्स। जैसे मुझे 10th में 88 परसेंटेज थे और 12th में 94 थे, तो उसका वो काउंट दिया गया। जैसे कि 10th को अगर 10 मार्क्स का था तो 10 में से मुझे 88 पे शायद 7 मार्क्स मिले होंगे। फिर मेरे को 12th में 94 था तो मुझे शायद 10 में से या 5 में से अराउंड 8 मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि मेरे को 94 थे, या 9 मार्क्स मिले होंगे। ऐसे करके ना पूरा प्रोफाइल बनता है तुम्हारा। फिर तुमने इंटरव्यू में वो 20 मार्क्स, जैसे मेरा आईएम जम्मू का इंटरव्यू 30 मार्क्स का था, एक्चुअली वो 100 मार्क्स का था, बट उसको फिर न्यूट्रलाइज करके 30 मार्क्स का बनाया जाता है, तो वो 30 मार्क्स का था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था। इवन इन माई होल कोचिंग एंड इन माई होल फ्रेंड सर्कल नोबडी डिड दैट। मैंने 30 में से 28 मार्क्स लाए थे मेरे इंटरव्यू में, तो उस वजह से मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। 12 में 60% हुए तो यू कैन बैलेंस इट आउट अमित, राइट? तुम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लो, तुम्हारा ग्रेड अगर हाथ में है तो ग्रेड में, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ला लो ताकि वहां तुम्हारा अच्छा हो जाए। तुम वर्क एक्स ले लो, इफ यू हैव डन द लाइक बी फार्म हो गया और तुम अभी साथ में जॉब करते करते प्रिपेयर कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बैलेंस आउट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस वही है, मेरे सीनियर कहते हैं कि तुम पुराने पाप तो तुम धो नहीं सकते, इसलिए अभी नए पाप मत करो। तो अगर तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपना ग्रेजुएशन का सीजीपीए अच्छा कर सकते हो तो वो अच्छा कर लो, ताकि तुम्हें ग्रेजुएशन वाले इसमें 20 मार्क्स का अगर होता है तो 18 मिल जाए, 20 मिल जाए। और अगर वर्क एक्स ले सकते हो वहां ले लो, इंटरव्यू अच्छा दे दो ताकि वहीं इतने अच्छे आ जाए कि बाकी चीजों की जरूरत ही ना पड़े। तो वो सब चीजें तुम कर सकते हो, टेंशन लेने की बात नहीं है। और फिर मैंने बता दिया इंटर स्कोर को 40% होता है, 10th-12th के मार्क्स को 15 होता है, ग्रेजुएशन के जीपीए को भी 15% होता है, वर्क एक्स को 10% दिया जाता है। जैसे मुझे वर्क एक्स में 0 मार्क्स था बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर। तो वैसे ही बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स थे जो 3 साल का वर्क एक्स लेके अभी आईआईएम में आ रहे हैं, तो दे हैव उसमें मार्क्स मिल रहे हैं उनको, बट उनको फिर शायद इंटरव्यू में कम मिले होंगे, ऐसा बहुत सारा होता है। तो यू कैन बैलेंस आउट योर प्रोफाइल, और फिर जीडी और इंटरव्यू के 20% होते हैं। नो योर टारगेट्स, ठीक है? यू कैन
एम ईदर टायर 1 ऑल 21 IIMs वी हैव. कैट से तुम्हें वो मिल जाएगा, जैट से एक्सिलरी मिल जाएगा, एसपी जैन, ISB हैदराबाद, ये सारी मेन कॉलेजेस है. ये सारी टायर 1 कॉलेजेस होती है. फिर टायर 2 जो होती है उसमें एनएम मुंबई आ जाएगा. जैसे somebody was asking about pharma MBA, राइट? उसमें एनएम में अच्छा चल रहा है, बट उसका भाई 8 LP is the average package of NMIMS pharma MBA. वन ऑफ माय फ्रेंड अभी उसने छोड़ दिया अभी ये सोच के कि 8 लाख पैसा तो भाई 25 लाख लग रहा है और 8 लाख का जॉब लेके क्या करूंगा. इससे अच्छा तो बी फार्म के बाद ही जॉब करके स्विच करके 8 तक पहुंच जाऊं. तो एनएम मुंबई, सिम्बायोसिस, बट एनएम मुंबई का कोर एमबीए इज वेरी रियली गुड. इट्स उसका एवरेज पैकेज इज अराउंड 22 lakhs. तो इट्स डूइंग रियली गुड. सिम्बायोसिस, एमडीआई, तापमी, दिस आर द कॉलेजेस. और हेल्थ केयर एमबीए इफ यू वांट टू गो तो IIM जम्मू में भी हेल्थ केयर एमबीए है, IIM बोधगया में भी हेल्थ केयर एमबीए है. दिस हेल्थ केयर एमबीए प्रोवाइड करता है. और GIM जो मैंने बताया मुझे ऑफर आया था, ये मैं कह रही हूँ इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर एमबीए जो है वो GIM ही दे रहा है. भले ही IIM जम्मू भी हेल्थ केयर दे रहा है, एक IIM भी हेल्थ केयर एमबीए दे रहा है, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि GIM जो हेल्थ केयर एमबीए दे रहा है वो कोई नहीं दे रहा है. बिकॉज GIM वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग हेल्थ केयर एमबीए इन इंडिया. और उसके जो कनेक्शंस है वो कोई भी अभी तक जो हेल्थ केयर एमबीए वालों के हैं उनके किसी के नहीं है. तो GIM हैड अ वेरी गुड कनेक्शंस. और मुझे अभी भी रिग्रेट हो रहा है बोलते हुए कि मैंने छोड़ा है, बट लेट्स सी, कुछ अच्छा ही लिखा होगा तो मैंने IIM जम्मू चूज किया. टॉकिंग अबाउट फीस, सो somebody was asking कि फीस इतनी ज्यादा है तो कैसे करेंगे. देखो फीस डेफिनेटली एमबीए की ज्यादा है, बिकॉज इसीलिए तो एमबीए को लग्जरियस डिग्री बोला जाता है यार. 2008 तक IIMs की भी फीस नहीं थी, जैसे IITs की नहीं है, एम्स की बहुत कम फीस है, वैसे IIMs की भी नहीं थी. बट फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार ये एमबीए करने के बाद तो लोगों को 20-20 लाख का पैकेज लग जा रहा है, 15-15 लाख का पैकेज लग जा रहा है, तो हम इनसे पैसे क्यों नहीं ले रहे, इनसे तो पैसे लेना चाहिए. तो 2008 के बाद ये डिसाइड हुआ कि इसकी फीस रखी जाएगी. और फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से अभी फीस 20 से 25 लाख हो गई है. पहले 12 होगी, 15 होगी, फिर ऐसे करते करते 20 से 25 हो गई है. तो इसीलिए इसको लग्जरियस डिग्री बोला जाता है. और इसीलिए तुमसे पैसे लिए भी जा रहे हैं, बिकॉज तुम्हें वो पैसे देने भी वाले हैं वापस, तुम्हें वो जॉब भी देने वाले. तो जैसे IIM की फीस 22 से 25-26 लाख होती है, तो तुम्हारा एवरेज पैकेज भी पैसा लग रहा है, राइट? एमबीए के लिए सस्ता कॉलेज नहीं होता, होता है FMS है, टिस है, JBIMS जैसा मैंने बताया वो है. और ये 3 तो बेस्ट कॉलेजेस है इन गुड बी स्कूल इफ आई टॉक अबाउट. बाकी फिर जो छोटे जो सस्ते कॉलेजेस है यार, वो प्लेसमेंट भी वैसे ही दे रहे हैं, नॉट दैट गुड. उनके कनेक्शंस भी बहुत ऐसे ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है. और जो मतलब इट्स नॉट दैट गुड. ये 3 कॉलेजेस है जो कम फीस लेके प्लेसमेंट दे, आई मीन अच्छी प्लेसमेंट दे रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. बाकी कॉलेजेस में तो फीस है मिनिमम 15 से तो होगी. इवन वन ऑफ माई जूनियर पता है कॉल्ड मी कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं एमबीए के लिए जाऊँ क्या, क्योंकि मैंने देखा उसका फीस वगैरह बहुत ज्यादा है. तो उसको मैंने वही समझाया था कि फीस देखोगे ना तो फिर कभी एमबीए कर ही नहीं पाओगे. क्योंकि मैं भी बहुत अभी मैंने भी लोन लिया है, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है. क्योंकि मैं 22 ईयर्स की हूँ यार, और मैंने अभी इतना लोन ले लिया है, तो मुझे डर है कि कहीं कुछ हुआ नहीं तो. बट फिर मुझे बाकी जो भी मेरे भैया लोग हैं और जिन्होंने IIM से किया है, मैंने जो बताया IIM जम्मू वाले सर, अभी वो IDBI ब्रांच मैनेजर नागपुर की है, जिन्होंने MBA सॉरी बी फार्म किया, फिर नागपुर से M फार्म किया, और अभी वो उन्होंने IIM जम्मू से MBA किया. और अभी वो ओके तो तुम्हारा गैप होगा अमित, मैं 22 की हूँ, अभी 23 की अक्टूबर में हो जाऊंगी. तो उन्होंने मैंने उनसे भी बात किया, वो भी ब्रांच मैनेजर है नागपुर में, तो सबसे मैंने बात किया. तो दे ऑल वर लाइक MBA इज गोइंग टू गिव यू दैट थिंग जो तुम्हें कोई और डिग्री नहीं प्रोवाइड कर सकती. बोला जाता है कि MBA तुम जीवन में एक बार करते हो, तो इसलिए अच्छी जगह से करो. बिकॉज इवन मैंने जब अभी मेरे सीनियर से बात की है, एवरीबडी वाज सेइंग कि जो तो 2-3-6 महीने बाद जो तेरा पर्सपेक्टिव होगा ना, वो तो खुद भी खुद को पहचान नहीं पाएगी. बिकॉज उतना प्रेशर तुमको देते हैं वैसी अच्छी कॉलेजेस में. मैं अभी देख रही हूँ मेरी फ्रेंड्स के जिनके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, उनका ओरिएंटेशन वीक चालू है, उनको सुबह 6-7 बजे उठाया जाता है, उनको कॉलेज बुलाया जाता है, उनका पूरा 7-8 बजे तक रात की क्लासेस चलती है, बीच में 1 घंटे की लंच ब्रेक मिलती है. उसके बाद फिर रात को 11 बजे फिर से प्लेसकॉन कमेटी या फिर कोई भी सीनियर्स की कमेटी बुला लेगी लेजर पहन के रात के 11 बजे, और तुमको वहां पे CV का काम करवाने लग जाएंगे या फिर कोई असाइनमेंट दे देंगे जिसकी डेडलाइन 3-4 बजे की है रात के. नाउ यू थिंक
कि मैं सुबह 6-7 बजे का उठा हुआ हूँ और पूरा दिन मैंने कुछ ना कुछ पढ़ाई किया है, कुछ ना कुछ किया है। अब रात में मुझे 3-4 बजे एक और सबमिशन करना है और मैं रात में 4 बजे वापस सोने वाला हूँ और मेरे पास सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद है। तुम सोच रहे हो तुमसे कितना ज्यादा काम कराया जा रहा है ताकि तुम वो प्रेशर झेलने की तुम्हारी एबिलिटी बन जाए, जो तुम्हारे नो नो नो, इट्स नॉट बुलिंग, इट्स नेवर बुलिंग। ये तुमसे 1 महीना 2 महीना कराया जाता है ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि असली कॉर्पोरेट क्या होता है, ताकि तुमको असली कॉर्पोरेट का स्वाद मिल जाए, वही बोलते हैं वो लोग तो। और तुम्हें आदत पड़ जाए कि एक प्रेशराइज सिचुएशन में जब तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, जब तुम्हें भूख लग रही है, तो तुम काम कैसे करोगे? अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में कोई ऐसी डील आ गई जिसमें तुमने अब सोए हो, तुमने 10 बजे अभी तुम्हारी नींद लगी है और तुमको अभी कॉल आता है तुम्हारे हेड से कि एक अमेरिका की डील है, उसका अपने को पीपीटी बना के 1 बजे भेजना है और वी हैव टू डू द मीटिंग। तो उस टाइम पे तुम्हें वो सिचुएशन कैसे झेलनी है वो तुम्हें एमबीए ही सिखा देगा। तुम लोगों से मिलोगे, एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, यू नो। तुम वहां ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे कि कोई डॉक्टर फील्ड से आया है, कोई लिटरली हमारी बैच में कोई 30 इयर्स का बंदा है जो एमबीए करने आया है अभी। तो यू कैन इमेजिन कि तुम्हें कितने डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वहां मिलने वाले हैं और तुम्हें कितने लोगों से क्या क्या सीखने मिलेगा। बिकॉज सब लोग, अब मैं फार्मा से जा रही हूँ, मे बी वहां पे फार्मा से 1-2 लोग और होगी, बट और नहीं होगे, तो उन लोगों को पता चलेगा कि फार्मा इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। उन लोगों को वो चीज पता चलेगी बी फार्म में क्या पढ़ापन है, मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, क्या बेसिक चीजें होती है। और अब कोई इंजीनियरिंग से आ रहा है, मुझे शायद कोडिंग सिखा दे। तो पीयर टू पीयर लर्निंग नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एमबीए, और वो अच्छा तुम्हें सिर्फ एक अच्छी गुड बी स्कूल में मिलेगा। और वो लोग पैसा भी इस चीज का ले रहे हैं क्योंकि तुम्हें कंपनीज आके पैसा भी उसी चीज का दे रही है, क्योंकि तुमने वो चीज ऑलरेडी झेल चुके हो। और उनको पता है कि अगर कोई नॉर्मल एमबीए कॉलेज में जाके कोई स्टूडेंट को हायर करेंगे तो उनको, अगर वो उसको काम देते तो वो उस चीज तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर उसको 10 मिनट की डेडलाइन मिली तो वो नहीं बना के दे पाएगा पीपीटी। पर क्योंकि अच्छी एमबीए कॉलेज में तुमको 10 मिनट में चीजें करनी सिखाई गई है, तो तुम्हें पता है कि कैसे करना है। यू विल एस दैट 10 मिनट, और तुम ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि जो मैनेजर ने भी नहीं सोचा होगा। और इसीलिए कंपनीज प्रेफर अ गुड बी स्कूल, और वहां पे वो लोग इतना पैसा दे रहे हैं क्योंकि वो चीज सिखाई गई है हम लोगों को एक 2 साल के पीरियड में। इफ तुम टॉकिंग अबाउट लोन, तो लोन भाई ऑब्वियसली सबको डर लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि इतना बड़ा लोन कैसे लोगे। बट तुम्हें पता है कि, और इवन मेरे को मेरी जूनियर पूछ रही थी कि मुझे कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा क्या, या फिर कोई गारंटर लेना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं भर पाई तो कोई और भरे। तो अगर तुम कोई अच्छी गुड बी स्कूल में जाते हो ना, तुमको कुछ मॉर्गेज नहीं रखना है, तुमसे कुछ पूछेगे भी नहीं। आई एम टेलिंग यू, मैंने लोन सैंक्शन करवाया है, मेरे को जाना भी नहीं पड़ा है। मैंने अभी तक कुछ साइन भी नहीं किया, बट मेरा लोन सैंक्शन हो गया बिकॉज ही नोज कि मैं आईएम जा रही हूँ और आईएम के बाद मुझे जॉब लगनी है और मैं उसका पैसा वापस करूंगी। उन्होंने मुझसे कोई गारंटी नहीं ली, ना मेरे मम्मी पापा की साइन लगी, ना मुझे कोई घर या सोना या कुछ रखना पड़ा कि मुझे उसकी बेसिस पे उन लोगों ने कोई सिक्योरिटी ली हो कि ओके ये हमने रख लिया, अगर ये नहीं दे पाई तो ये हमारे पास कुछ तो सिक्योरिटी है। बिकॉज दे नो, बैंक पागल तो नहीं है ना कि किसी को भी ऐसे फ्री में लोन दे देगी। बिकॉज इवन तुम लोग देखते हो कि कोई अगर लोन लेने में जा रहा है तो बैंक कितने सवाल पूछते हैं कि कहाँ रहते हो, तुम्हारी घर की विजिट होगी, तुमने आईटीआर फिल किया है क्या, तुम कितना कमाते हो, तुमको कैसे दे दे, तुम्हारा सिविल क्या है, पैन कार्ड क्या है, कितनी चीजें पूछ जाती है, राइट। बट मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, मेरा सिर्फ आया है। इवन मुझे 4-5 बैंक का सामने से कॉल आया, प्लीज हमसे ले लो, प्लीज हमसे ले लो आप लोन, बिकॉज दे नो कि उनको आरओआई मिलने वाला है उनको। इवन मेरे एक भैया है, उन्होंने आईएम त्रिची से एमबीए किया, अभी वो वीपी है, वीपी की पोजीशन पे इन कोटक महिंद्रा बैंक, अभी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है। उन्होंने कब किया, लेट मी टेल यू, उन्होंने 2019 में आईएम त्रिची से एमबीए करके निकले हैं वो, और अभी है 2026। कितने साल हुए? एनीबडी कैन टेल मी? सब सो गए क्या? 7 साल। तो 7 साल में वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ मुंबई ब्रांच। तुम सोच सकते हो? नहीं ना, राइट। बी फार्म के बाद ये कहाँ होगा, या एम फार्म के बाद ये कहाँ होगा कि 7 साल बाद तुम ये चीज वाइस प्रेसिडेंट हो कि लोग तुम्हें आके, यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई एमबीए गिव्स यू दैट लीडरशिप रोल स्विच कि तुम भाई 2-2 साल में तुम एक पहले मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर वीपी, फिर ऐसे डायरेक्टर, फिर पार्टनर करके इतना स्विच होता है कि तुम इतने जल्दी पोजीशन पे पहुंच जाते हो। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यू कैन ऑल सर्च हिम यार, और श्रेयांश नाम है उनका, श्रेयांश जैन, तुम लिंक्डइन पे देख लो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तुम नहीं, जैन नहीं था सरनेम, मैंने उनका सरनेम भूल गई, सॉरी।
तो और एक और वो सर मैंने बताया MBA वाले, वो उनको भी तुम लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं नाम बताऊंगी तुम लोगों को, मैं नाम भूल गई हूँ एक्चुअली। तो वो लोग लिविंग प्रूफ है, राइट? इवन आई एम द लिविंग प्रूफ, फार्मा के बाद मैं आई एम जा रही हूँ, राइट? तो इट इज इजी, इट इज पॉसिबल, एंड इट विल गिव यू दैट स्विच जो कोई और फील्ड तुम्हें नहीं दे पाएगी, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी इन द पोजिशन की यू शुड गो फॉर MBA इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट मेडिसिन एंड ऑल। तो this is why all of this was like EMI and all। तुम्हारी EMI, अच्छा ठीक है, let me ask you all this question। अगर तुम 25 लाख का लोन ले रहे हो या 30 लाख का लोन ले रहे हो फॉर एग्जांपल, और तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी मंथली EMI कितना बनेगी जब तुम्हारा जॉब लग जाएगा? वैसे तुमको 2 साल तो वैसे भी पैसे वापस नहीं देने हैं, एक और साल तुम्हें दिया जाता है कि 1 साल तुम चिल करो, 3 साल तक तुम्हें पैसे वापस नहीं करने हैं, 3 साल के बाद तुम्हारी EMI स्टार्ट होती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 3 साल के बाद मंथली EMI कितनी होगी? इतनी कम? 25 लाख के 30 लाख का लोन लेने के बाद प्रशांत, डू यू थिंक 10,000 तो ऐसी EMI बन जाती है 1 लाख के लोन पे? तुम्हारा पैकेज लग रहा है 1 लाख और तुम्हारी EMI बनेगी 20 से 25,000 की। तुम्हारा पैकेज लगा 1 लाख और 25,000 की EMI लगी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 75,000 तुम्हारे इन हैंड बचे हैं, उसमें से चलो मान लेते तुम बैंगलोर या मुंबई में रह रहे हो, तो तुम्हारा 30-40,000 तो उसमें रहने को जाएगा। तो 75,000 में से इफ यू रिमूव 30,000 या 40,000, चलो मैक्सिमम हम 40,000 रिमूव करेंगे, तो भी यू हैव 35,000 इन हैंड, जो तुम खुद पे उड़ा सकते हो, लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, जहां जाना है, ट्रिप्स पे जाना है, जो करना है कर सकते हो। 35,000 में से तुम चलो 15,000 सेविंग में डाल रहे हो, SIP कर रहे हो, तो भी तुम्हारे हाथ में है ना 20,000। उसको उसमें तुम कपड़े खरीदो, हर महीने 20,000 बच रहे। कैन यू ऑल इवन इमेजिन? B.Pharm के बाद तो जॉब भी 20,000 की लग रही है आजकल। तो ये डिफरेंस होता है चीजों में, इसीलिए मैं कहती हूँ कि MBA गिव्स यू दैट, like it unlocks a better opportunity for us, because मैं ऐसा नहीं कह रही, बिकॉज मैं भी जब B.Pharm में आई थी, मैं यही सोच के आई थी कि मैं अच्छा करूंगी मेडिसिन में और मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, पर जो मार्केट कंडीशन अभी चल रही है उस हिसाब से, जो सैचुरेशन आया है उसके हिसाब से B.Pharm में आगे बढ़ना मुझे सही ऑप्शन नहीं लगा, एंड दैट्स व्हाई आई चोज एन MBA टू like start my career with। even NMIMS offer M.Pharm plus MBA वाला कोर्स, इवन मेरे क्लास से भी बहुत लोग गए थे, बट उसके बाद भी जो जॉब्स लग रही है NM फार्मा MBA के बाद भी जो जॉब्स लग रही है, इट्स नॉट गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल जो एक जनरल MBA वाला और एक अच्छी कॉलेज दे पाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि you can prefer core if you are getting into it, and if you are not passionate about healthcare and you are sure about कि तुम्हारा लाइफ तुम्हें बनाना ही है हेल्थकेयर में, तब तक तुम्हें कोर MBA चूज करना चाहिए एंड नॉट हेल्थकेयर और फार्मा MBA। ओके, सो एट लास्ट विल टॉक अबाउट, हाँ इसके बाद शायद लास्ट स्लाइड है अमित, विल टॉक अबाउट डाउट्स। ओके, आई विल ओपन द फोरम फॉर ऑल। यहाँ से क्या याद रखना है कि फार्मा बैकग्राउंड इज एन एसेट, लोग प्रेफर कर रहे हैं, कंपनीज आर प्रेफरिंग, कॉलेजेस आर प्रेफरिंग कि पीपल फ्रॉम फार्मा कम देयर, उनके कॉलेज में इंटरव्यू दे, उनके कॉलेज में आए, बिकॉज उनको डाइवर्सिटी चाहिए, उनको पर्सपेक्टिव चाहिए जो अपने पास है, जो अपने 4 साल में बिल्ड किया है। ओके, इसका मत सोचना कि फार्मा के बाद MBA करना इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। मैथ्स फियर इज मैनेजेबल, मैथ्स फियर इज मैनेजेबल, सो यू कैन ओवरकम इट। अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे 1 घंटा, तुम्हें धीरे धीरे मैथ्स पसंद आने लगेगा, क्योंकि B.Pharm में पूरा थेरी पढ़ के दिमाग खराब तो सबका हुआ होगा, और जब मैथ्स में तुम खुद सॉल्व करोगे, खुद एक अथॉरिटी लोगे ना चीजों की, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मजा आता है मैथ्स सॉल्व करने में। MBA ROI is real, don't think about education loan, don't think about fees। I'm telling you, मैं खुद लोन लेके बैठी हूँ, मुझे भी डर लग रहा था, मेरे पेरेंट्स को भी डर लग रहा था, और जब मैंने बात किया बाकी लोगों से, मेरे भैया ने 5 साल में लोन निपटा दिया उनका, उन्होंने भी लोन लिया था, उन्होंने 5 साल में लोन निपटा दिया, वो बाकी चीजें कर रहे हैं। तो MBA का ROI इज रियल, तुम्हारी जॉब ही ऐसी लग जाएगी कि तुमको लोन की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए टेंशन मत लो एजुकेशन लोन का। इट इज वेरी इजी, तुम्हें इजीली लोन मिल जाता है, बैंक्स खड़े हैं तुम्हें लोन देने के लिए, क्योंकि तुम्हारा IIM में एडमिशन हो। एंड स्टार्ट नाउ नॉट लेटर। 1 मंथ का डिले भी अगर तुमने किया अब, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कैट निकालना, क्योंकि धीरे धीरे अभी हम लोगों को फाउंडेशन भी बिल्ड करना है, धीरे धीरे सब चीजें होगी, तो इसलिए अभी ही स्टार्ट कर देना। इफ यू
इफ यू गेट दैट क्लैरिटी कि मुझे करना है प्रिपेयर, और इन्फॉर्म डिसीजंस लेना। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला एमबीए करना है इसलिए एमबीए कर लिया, या फिर मैंने मना किया एमफॉर्म ना करने से तो इसलिए एमफॉर्म नहीं करोगे। टेक इन्फॉर्म डिसीजंस। उस टाइम पे बताने वाला कोई नहीं था इसलिए फार्मा में आ गए, बट अभी जो भी डिसीजन लोगे इट्स द लास्ट डिसीजन यू आर टेकिंग फॉर योर करियर, बिकॉज इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम और कुछ पढ़ोगे या फिर और कुछ डिसीजन लेने के वो रहोगे, बिकॉज तुम्हारी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो भी डिसीजन लोगे, या तो एमफॉर्म करोगे या तो जॉब या तो एमबीए, राइट, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाओगे, तो जो भी करोगे सोच समझ के करना, बिकॉज इट इज द लास्ट इजी चांस टू चेंज योर करियर ट्रैजेक्टरी। Sometimes you have to risk everything for a dream only you can see, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने मेरे फाइनल ईयर में स्नैप दिया था और एडमिट दिया था, कैट का फॉर्म मेरा निकल चुका था, ओके। और उस टाइम पे मुझे फार्मा एमबीए ही करना था, आई वाज श्योर मुझे फार्मा एमबीए करना है, तो सिम्बायोसिस या हेल्थ केयर एमबीए करना है, मुझे जाना ही नहीं था कोर में, बिकॉज मैं बहुत डरती थी। उस टाइम पे मेरा एडमिट मैंने दिया था और मेरा कुछ 6 या 8 मार्क्स से मेरा आया था 192 या 194, ऐसा कुछ तो भी मार्क्स आया था। और कट ऑफ नहीं, मेरा आया था 182 या 184 और कट ऑफ था